organisms also. We have to study the respiration in insects like cockroaches, earthworm. How do they respire? Am I right? Yes, ma'am. Okay. But Yes, ma'am, you said that you will discuss the exercises. yeah, we will do the exercise first. Let finish the chapter first of all. Then we will do the exercise. Okay, ma'am. Fine. So see this. As we have studied regarding the humans, that in humans what is, yeah. In humans we have studied that intake of oxygen when you are, okay. Can you see the screen? Yes, ma'am. Clearly. Okay, fine. Okay, so when the oxygen is being taken in and CO2 is being released out. So last time we have studied that respiration, in total the process is something different, and breathing process जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो inhalation और exhalation को belong करता है. Am I right? Yes, ma'am. Okay, fine. Now see over here that if I say regarding the respiration, okay, you must have done that exercise. आपने वो lungs को कैसे blow होते Yes, हैं ma'am. lungs. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have done. Okay, you have done. The rest of others, Arushi, Arpana, Ayush, Divan, have you tried that? Yes, ma'am. You have tried that how the lungs are being blown up. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That balloon activity, right? Yes, yes, that's what I am asking. Yes, ma'am. I have done that. Okay, so you must have experienced that when you are blowing the air through the passage and when the passage is being divided, both the lungs are having the equal distribution of air, whatever you are blowing inside. Yes, ma'am. Okay, so it's like equal distribution. Similarly, हम जैसे जब respire करते हैं तो whatever air you are intaking, it's equally means बट मैम distribute. वो दोनों दोनों पाइप्स में इक्वली एयर डिवाइड हो जा रहा था. Yeah, it is dividing equally, and both the lungs have the same tendency to blow up and to release the air at the equal pace. ऐसा कुछ भी नहीं है कि one will intake the air first then other will take, ऐसा नहीं होता. या जब रिलीज करते हैं तब भी ऐसा नहीं होता है कि एक ने रिलीज कर दिया उसके बाद दूसरे ने रिलीज किया. It's all together simultaneous activity. Am I right? Okay, so that Yes, is ma'am. that is what you have to understand with that particular activity. And one more thing regarding that this particular respiration is, we know that we are inhaling the when you are inhaling the air inside, it have lot of composition in it. ठीक है, उसमें सारे compositions है. It's not like only you will be having the this oxygen, which when you are your nose will only select the oxygen from the air, and then that much part only it will be inhaling. ऐसा नहीं, हम इन टोटल पूरा एयर इनहेल करते हैं और उसके बाद जो हमारे लंग्स हैं उसमें से ऑक्सीजन को चूज कर लेते हैं. इज इट ओके टू अंडरस्टैंड फॉर यू? आर यू गेटिंग दिस? ये चीज समझ यस में? मैम. हाँ. यस मैम. मैम मैं म्यूट थी और यस मैम बोल रही थी तो वो थोड़ा. Okay, fine. So that part you must have understood. Okay. So so there एक्सक्यूज are मी lot मैम. of, yes dear. मैम फिर जब हम लोग एक्सेल करते होंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो भी अदर गैसेस हम लोग इनहेल किए वो भी निकल जाते होंगे. Some of them stay inside, some of them are being released outside. जैसे कि आप अगर इन सब की यूजफुल बात, गैसेस आर स्टे इनसाइड. what you are saying?
Ma'am, the useful gases stays inside our body. It's not like that. It's like sometimes some of the gases which are causing harm to our lungs, they cheat our system, and they just remain inside, and they just do the harmful means infections for our lungs. जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपने सुना है? Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक है. So the carbon monoxide is the one which goes inside in our lungs, and it doesn't means immediately comes out. It damages our lungs, and then only it will be out. Okay, so this is something which is not very good to have means experience. So that because that is a poison, it will make you the short of breathing. आपको ऐसे लगेगा कि आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अगर अंदर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह अंदर जाता है, ठीक है ना. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड इफ यू हैव टू वन मोर थिंग यू कैन डू इज, अगर आप अपना ये जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी मतलब जो आपका रिब्स वाला जो पूरा स्पेस है, ठीक है, बैक से लेकर रिब्स वाला, ये स्पेस जो है वो कितना ऑक्यूपाई हो रहा है ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो आप मेजर कर सकते हो. जैसे कि आप इनहेल करते हो और फिर आप मेजरमेंट लो चेस्ट का, और फिर उसके बाद एक्सहेल करो, तो फिर आप है ना मतलब मेजरमेंट लो चेस्ट का. तो दिस कैन मेक यू अंडरस्टैंड. देखो कि ओके फाइन, इतना जो डिफरेंस है आपके जो चेस्ट के साइज में जो डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू आफ्टर मेजरिंग, आफ्टर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, so you can determine that how much your lungs can be blown up. तो आप कितना ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो, कैसे एक्सेल होता है, तो कितना ज़्यादा स्क्वीज हो रहा है, that part you can understand through this particular activity. This all these things are basically what you can do is that in your, I think in your school, that science room activities are all these activities. But right now as schools are not working, यू कैन परफॉर्म दीज एक्टिविटीज एट योर होम, है ना. तो आप ये चीज अपने घर पे भी कर सकते हो. आप अपना मेजरमेंट ले सकते हो, पापा का ले सकते हो, भैया का ले सकते हो, छोटा कोई बच्चा है उसका भी ले सकते हो. तो है ना, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कितना ज्यादा साइज में डिफरेंस आता है जब चेस्ट इनहेल और एक्सहेल करता है. तो एक ये चीज है, ठीक है. एंड वन मोर एक्टिविटी आई एम गिविंग यू, जस्ट इन ये आपके स्कूल लैब में आपको करवाया जाएगा, in which what you have to do is you have to take a test tube. Okay, you have to take you have to take a test tube like this, and fill it with the lime water. उससे उसको आपको किससे फिल कर देना है? लाइम वाटर से. तो लाइम वाटर से फिल करने के बाद what you have to do is just put one straw in it. Okay, like this, put one straw. Okay, and what you have to do is inhale very in a very good manner. You just have to inhale as much as you can. Keep the air inside and for a fraction of seconds, and then you just exhale out through the straw. जैसे ही आप एक्सेल करोगे ना, तो ये लाइम वाटर का जो है कलर चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा. आप एक्सेल करोगे तो क्या रिलीज करोगे? मैम, मुझे CO2. समझ नहीं आया. मैम, आपने जो कहा ना कि इनहेल करेंगे, तो मैम हम इसको कैसे इनहेल करेंगे? एयर इनहेल करना है, इनहेलेशन करना है आपको. ओके मैम. ओके, इनहेलेशन करना है नॉर्मल, और उसके बाद आपको एयर एक्सेल करनी है. किसमें? स्ट्रॉ में एक्सेल करना है, ठीक है. तो वो स्ट्रॉ से जो क्या होगा, CO2 पूरा है जो लाइम वाटर में जाकर मिक्स हो जाएगा, और मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा उसमें CO2 जब रिएक्ट करेगा तो लाइम वाटर का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. आपको लाइम वाटर जो है ना, इट विल टर्न लिटिल बिट मिल्की. कैसा दिखेगा वो? मिल्की. Is this part is clear to you? यस मैम. Okay. यस मैम. मैम, ये लाइम वाटर मतलब हम लोग वहाँ लेमन जूस ले सकते हैं? It's not that lime, beta. It's
line which you क्विक लाइन ये हो। yes, okay, which you use for painting your house and all that. ओके ओके मैम। बट वो वाला लाइन पेंट वाला लाइन नहीं यूज होता है, लैब वाला लाइन जो होता है वो अलग होता है, ठीक है, तो वो आपके स्कूल में अवेलेबल होगा, वो आप कर सकते हैं। दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ओके मैम। Got it? So this is how you have to understand. So these are all these activities. आप मतलब inhalation और exhalation का proof दे सकते हो, ये सारी activities perform करोगे तो आप inhalation exhalation का proof दे सकते हो कि ऐसा होता है सच में, और you are releasing CO2 and you are intaking oxygen through these activities. You can at least give little bit of hint to the people who doesn't know what do you mean by inhalation and exhalation. Okay, so that is what you have to understand. Now see this, that जैसे हम ब्रीथ करते हैं वैसे बाकी सारे एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो बाकी सारे एनिमल्स जब ब्रीथ करते हैं तो बेसिकली उनके पास हमारे जैसा लंग वाला सिस्टम वगैरह नहीं होता, दे डोंट हैव द सिस्टम लाइक अस, ठीक है, तो बेसिकली आपने जैसे आपने लोअर क्लासेस में जो पढ़ा है कि जो फिशेस होती है, फिशेस वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है, यू नो दिस? यस मैम। ठीक है, फिर फ्रॉग होते हैं, तो फ्रॉग जो होते हैं वो अपने स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। मैम मैम वो कैसे गिल्स से रेस्पायर सिस्टम करते हैं मैम? इट दे हैव गिल्स जो है वो उनके लिए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है ना, वैसे उनके गिल्स वो उनके लिए फंक्शन करते हैं बेटा, क्योंकि अगर उनको नोज और लंग्स वगैरह होंगे तो वो तो पानी में रहती है, तो पानी भर जाएगा ना लंग्स में, यस मैम यस। तो उनके बॉडी में ऐसा लंग वाला स्पेस नहीं होता है, क्योंकि स्पेस होगा तो उसमें वाटर चला जाएगा, बट ये जो गिल्स है वो क्या करते हैं, जो वाटर में से ऑक्सीजन होता है उसको फिल्टर करके अंदर लेते हैं और उसके बाद CO2 बाहर रिलीज करते हैं, सो दैट इज हाउ दे आर रेस्पायरिंग, और फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। नाउ इफ यू हैव द कॉकरोचेस, कॉकरोच जो है उनके पास भी एक स्पेशल मैम तरीके लेग मैम लेग नॉट गेटिंग यू बेटा, ठीक है, मैम लेग लेक लेक व्हाट? मैम कॉकरोच ब्रीथ थ्रू लेग्स। लेग्स, यस लेग्स, मैम। लेग्स की बात कर रहे हो? यस मैम। अच्छा, लेग्स की एक्चुअली लेग्स नहीं होता है, एग्जैक्टली उनके जो ऑर्गन्स, जो स्पेशल एरिया है फॉर रेस्पिरेशन, दे आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। ये स्पाइरेकल्स जो होते हैं ना उनके लेग्स के पास में होते हैं, इसलिए आपको ऐसे आपने कहीं पढ़ लिया होगा शायद कि लेग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, बट लेग्स के थ्रू नहीं, वो स्पाइरेकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ये स्पाइरेकल स्पेशल टाइप के ओपनिंग्स हैं, छोटी छोटी पोर्स होती है जिसके थ्रू एयर जो है वो अंदर जाता है और एक्सचेंज होती है एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है, सो दैट इज हाउ दीज कॉकरोचेस आर बीइंग रेस्पायरिंग। देन बहुत सारे एनिमल्स और भी हैं जो स्पेशली नॉट एग्जैक्टली लाइक अवर ट्रैकिए बट ट्यूब स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पास, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए उसको हम लोग ट्रैकिए ही बोलते हैं, ठीक है, मैम तो ये विंड पाइप की हमारे तरह होता है। हमारे अंदर जैसे ट्रैकिया है ना, जो पूरा मैम विंड पाइप। विंड पाइप, तो वैसे ही कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर ट्यूब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो ये ट्यूब स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आप जस्ट एक फ्लूट इमेजिन करो, फ्लूट बांसुरी पता है ना आपको? यस मैम। बांसुरी में कैसे होल्स होते हैं और एक लंबा पैसेज ट्यूब होता है, तो बहुत यस सारे इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये ट्यूब लाइक पैसेजेस होते हैं, तो वो ट्यूब्स के थ्रू, वो होल्स के थ्रू वो उसमें एयर रिलीज कर देते हैं और उसी होल्स के थ्रू एयर को एक्सचेंज कर लेते हैं। दीज आर कॉल्ड, बिकॉज वो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसलिए हम उनको ट्रैकिए बोलते हैं, ठीक है, सो दीज आर द ट्रैकिए और द ट्यूब फाउंड इन मेनी ऑफ द इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स में होते हैं, ठीक है। देन अर्थवॉर्म है,
अर्थवॉर्म अपने स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, ठीक है। देन फ्रॉग्स, फ्रॉग्स जो है वो उसके पास लंग्स भी है और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि फ्रॉग जो है वो स्किन और उसके पास हमारे जैसे लंग्स भी होते हैं। वो दो तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। जब वो पानी में जाता है तो स्किन से करता है और जब जमीन पे आता है तो लंग्स से करता है, क्योंकि पानी में लंग्स से करेगा तो लंग्स में पानी भर जाएगा, इसमें तो अब स्किन से करता है। सो फ्रॉग के पास दो ऑप्शन है। देन अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो अपने प्योरली अपनी स्किन के थ्रू करते हैं, बिकॉज उनका आपने स्किन देखा होगा बहुत ही ग्लॉसी ग्लॉसी स्टिकी स्टिकी सा दिखता है, उनका स्किन दिखता यस है, मैम, यस। ठीक है। एंड दैट हेल्प देम फॉर ब्रीदिंग। अगर वो सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे तो वो ब्रीथ नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच स्लाइमी इन नेचर। और क्योंकि उनके स्किन के थ्रू एयर एक्सचेंज होता है, तो जैसे हमारा ये जो नोज पार्ट है उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है ना, आप टच करोगे तो गीला गीला फील होता है, मैम, यस ठीक है। मैम। सिमिलरली अर्थवॉर्म का स्किन भी इसलिए स्लाइमी और मॉइस्ट होता है क्योंकि वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। Okay, so that is how these especially these insects will are breathing. Okay, इसी तरह से फिशेस जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं। गिल्स जो है उससे ही कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स सारे, ठीक है। तो वो ब्लड वेसल्स गिल्स के पास से ही ऑक्सीजन लेके सारी बॉडी को दे देते हैं और वहीं पर आके फिर सब कुछ रिलीज कर देते हैं। ओके, नाउ सी दिस। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। ओके, सो द थिंग इज, डू वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ये थोड़ा आप रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म जो है पार्ट, वो एक जन कोई रीड करो तो बेटा। कौन सा पार्ट? मिस कौन सा, स्टार्टिंग से? हाँ अर्पना बेटा, ये वो रीड करो तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन खत्म हो जाता है ना उसके बाद। यस मैम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नॉट इन प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिजम्स यू हैव। अर्पना, मैम आपने कहाँ से, यस मैम आपने कहाँ से कहा, एक बार फिर से बोलिए ना मैम। हाँ, I said you just go through the respiration. मैम, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। नो मैम, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। हाँ, respiration in organisms जो है वो रीड करो तो बेटा। मैम स्टार्टिंग से ना रीड करना है? हाँ, शुरू से। ओके मैम। मैम, मैं उसी चैप्टर के एनिमल्स के बात कर रहा था मैम। रेस्पिरेशन एनिमल्स है ना उसी चैप्टर में, वही मैं बोल रहा था। यू Wait. ऑलरेडी नो। ओके, यू ऑलरेडी नो। वेट बेटा, मैं ऐसा कह रही हूँ कि ह्यूमंस आपका पार्ट कंप्लीट है, ह्यूमंस हमने लास्ट टाइम रीड किया था, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ह्यूमंस के बाद जो बाकी सारी ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है ना, इंसेक्ट्स वगैरह की, वहां आपको रीडिंग करना है। मैम, ह्यूमंस के आगे की पेजेस में है। ह्यूमंस फिनिश हो जाता है उसके बाद। तो उसके बाद तो मैम टॉपिक आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स यस मैम। प्लांट्स नहीं, बाकी दूसरे एनिमल्स। मैम, वो यस, तो नेक्स्ट रेस्पिरेशन चैप्टर इन में जाता एनिमल्स है। आता है एक टॉपिक हम लोग का, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ओके, सो रीड दैट, एनिमल्स वाला रीड। ओके मैम। In small animals, the exchange of gas take place by diffusion through their overall body surface. In large animals, there are organs which help in bringing oxygen from the air inside the body so that cellular respiration can take place easily. In small organisms like amoeba, hydra, oxygen enters and carbon dioxide goes out through this through the simple process of diffusion.
In earthworms, in earthworms and leech, the skin is the organ for exchange of gases. It is smooth, moist, and richly supplied with blood. In fish, prawns, and crabs, the respiratory organs are the gills. Oxygen rich in enters through the mouth, and deficient water leaves through the gills. Insects have a network of branches tubes are called trachea for respiration. These trachea open on the surface of their body through pores. Some animals have very developed spongy organ called lungs for respiration. In mammal structure like diaphragm and rib cage support for the process of breathing. Many of you might have observed the movement of ribs in cow, cows, dogs, and small babies while they are sleeping. मम्मी, do you know वाला भी read करना है? नो नो, यहाँ तक ही बस, ठीक है. सो हैव यू अंडरस्टूड बेटा? Yes, Ma'am, ma'am. I have a question. यस. Ma'am, carbon dioxide is an organism. कार्बन डाइऑक्साइड. Ma'am, carbon dioxide is an organism. Ma'am, she mean organism. नो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस. Yes, ma'am, of course But it is. ma'am, in the first point there is that carbon dioxide is an organism. No, ma'am, in the first what you are point there saying? is, हाँ. ma'am, she is telling in the first point there is carbon dioxide is means of organisms. Ma'am, in the first point there is written in small organisms like amoeba and hydra, the oxygen enters and carbon dioxide goes out Yes. through the simple process of diffusion. डिफ्यूजन. ओके. सो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिज्म नहीं है. मैम, इस पॉइंट में क्या बता रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है. अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, जो आपको नेकेड आई से नहीं Yes, दिखते ma'am. हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो गैस जो ट्रांसफर होता है वो थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है. ठीक है. अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन सिंपल है कि अगर सपोज इफ दिस इज अ अमीबा, दिस इज अ ऑर्गेनिज्म, तो वो उसके बॉडी के हर एक जगह से, कहीं से भी, किसी भी जगह पर से जो ऑक्सीजन जो है, सॉरी, CO2 जो है वो बाहर आएगा और ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगा. बॉडी के सारे सरफेस पे ये चीज हो सकती है, कोई स्पेशल जगह नहीं है कि यहीं से होगा या वहां से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं. ऑल ओवर द सरफेस गैस अंदर डिफ्यूज हो सकता है और वहां से कहीं से भी वो रिलीज हो सकता है. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I thought there is comma. That's why I thought there are Yes, also ma'am. There is amoeba and hydra, then there is a comma, and then there is oxygen, and then carbon Yes, dioxide. So, yes, ma'am. yes. Then also दीज आर द एग्जाम्पल्स. अमीबा, हाइड्रा, ये सब एग्जाम्पल्स है. गॉट इट? okay, ma'am. हाँ. तो वो डिफ्यूज करते हैं. डिफ्यूज मतलब सिंपल डिफ्यूजन जो आप देखते हो ना, जैसे आपके घर में आपने देखा होगा कि अगर कोई एक रूम में परफ्यूम को स्प्रे करता है तो वो आपको पूरे एरिया में अराउंड, मतलब उस रूम के आसपास भी पता चलता है कि हाँ, किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया है. एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, दैट इज ma'am. कॉल्ड डिफ्यूजन. मतलब उसका क्या है कि जो गैस है वो धीरे 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 सब जगह पर स्प्रेड हो रही है. ठीक है, जो परफ्यूम वाला जो स्मेल है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है. Yes, ma'am. दैट Ma'am, इज the कॉल्ड. process of dissolving by its own. हाँ, तो वो अपने आप इजीली एटमॉस्फेयर में जाकर सेटल हो जाए. सिमिलरली जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी जो गैसेस है वो ऐसे ही धीरे धीरे अपना एक्सचेंज करते रहते हैं. दे डोंट हैव स्पेशल एरिया, स्पेशल पोर और समथिंग लाइक दैट फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू नाउ? Yes, ma'am. Okay, fine.
So this is how the organisms are respiring. Now if I talk about the plants, ठीक है, तो plants जो हैं उनका respiration थोड़ा सा अलग है. उनके पास हमारे तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन करने के लिए स्पेशल चीजें हैं. कैसी चीजें हैं वो हम देखते हैं अभी. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी भी प्लांट को हम स्टडी करते हैं, वी नो दैट इफ वी स्टडी द प्लांट, सो see, if I, this color is not visible, no? Yes, fine. So see this, we know that plant do have the root system. प्लांट के पास रूट सिस्टम होता है और उसी के साथ उसके पास होता है शूट सिस्टम जो ऊपर होता है. ठीक है, तो ये होते हैं रूट्स लाइक दिस. ओके, एंड देन यू हैव द शूट. वहां पर लीव्स भी होती है. यू हैव लीव्स ओवर हियर, यू हैव ब्रांचेस, यू हैव इवन द फ्लावर्स. ठीक है, फ्लावर की प्रेजेंस भी होगी. सो दैट इज द शूट सिस्टम. ठीक है, नाउ सी हियर दैट बेसिकली जब रेस्पिरेशन करना होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करना होता है, तो प्लांट के पास एक स्पेशल चीज है. सबसे पहले हम लीव्स की बात करते हैं. तो अगर हम लीव्स को आप माइक्रोस्कोप में, जैसे ये है एक पर्टिकुलर लीफ, ठीक है, दिस इज अ लीफ. ओके, और इस लीफ को आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि इस लीफ के जो माइक्रोस्कोप के अंदर, सपोज ये माइक्रोस्कोप की फील्ड है, ऐसा राउंड फील्ड होता है ना. यस मैम. ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में आपको दिखाई देगा कि ऐसे करके ऐसे एक स्पेशल स्ट्रक्चर है इस टाइप का. ऐसे ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा. तो अभी मैं इस स्ट्रक्चर को बाहर ड्रॉ करती हूँ अच्छे से बड़ा हुआ. ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ऐसे लगेगा कि जैसे आपने दो बीन शेप जो बीज होते हैं ना वो रखे हुए हैं, किडनी शेप्ड. ओके, सो टू किडनी शेप्ड ऐसे सेल्स दिखाई देंगे आपको और बीच में ऐसे स्पेस दिखाई देगी. तो बेसिकली क्या होगा, और इसके आसपास जो है वो नॉर्मल सेल्स होंगे. ठीक है, जो नॉर्मल आप ऐसे सेल्स ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, दीज आर द लीफ के सेल्स. Yes ma'am, you have also taught it in the first chapter. हाँ, ओके, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे. तो ये जो दो सेल्स हैं आपको दिख रहे हैं जो किडनी शेप्ड है, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. ये क्या है? हाँ, ये गार्ड सेल्स है. और ये दोनों का ये शेप की वजह से यहाँ पर एक स्पेस बन जाता है. इस स्पेस को या छेद को या फिर पोर को, मैम ठीक है, स्टोमाटा. इसको हम बोलते हैं स्टोमा. इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमा. स्टोमा का मतलब क्या होता है? पोर. ठीक है, तो गार्ड सेल्स और स्टोमा को मिला के आप क्या बोलोगे? स्टोमेटा. अब क्लियर हुआ आपको? यस मैम. ठीक है, तो ये जो छेद है उसे बोलेंगे स्टोमा और ये जो है गार्ड सेल्स है. ये गार्ड सेल्स की वजह से ही ये पोर बनता है. ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टोमेटा. अब ये स्टोमेटा का काम क्या है वो देखो. जस्ट सी, लुक हियर एंड ऑब्जर्व ओवर हियर. इसका ये जो पोर है इसमें से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है. मतलब ये क्योंकि प्लांट्स हैं तो प्लांट्स का काम क्या है? O2 रिलीज करना और CO2 को अंदर लेना. ये प्लांट्स का काम है. हमसे उल्टा करते हैं ना प्लांट्स.
यस मैम। ठीक है, तो O2 बाहर देगा और CO2 Yes, अंदर लेगा। ये प्लांट्स करते Yes, हैं ma'am. रेस्पिरेशन में। नाउ सी व्हाट विल हैपन दैट, जैसे कि सपोज बहुत गर्मी है, अभी मैं आपको इसको ऐसे करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सी हियर, देखो बहुत अगर एनवायरनमेंट में गर्मी है और है ना, मतलब धूप है तेज, और अभी जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ कैसे सीजन था, एकदम ह्यूमिड ह्यूमिड गर्मी वाला था ना, बहुत ज्यादा। Yes, ma'am. ठीक है, यस तो मैम। हाँ, तो उसमें आपको क्या समझना है, ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये ऐसे पोर को ओपन कर देते हैं। ठीक है, ओपन करने की वजह से क्या होता है, CO2 अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये पोर खुल जाता है तो प्लांट बहुत सारा वाटर भी लूज करता है, इसमें से पानी भी रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। तो वाटर कहाँ से आता है, वो आता है, ट्रांसपीरेशन। हाँ, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाटर कहाँ से आता है, ये रूट जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो पानी जो है वो इस पोर के थ्रू यस बाहर मैम, आता है। वेसल्स। ठीक है, वेसल्स। इसलिए इसलिए अभी आप देखो, आप एक चीज समझो कि जब बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा ऐसे होता है, तो जिसके घर के पास बहुत पेड़ होते हैं, ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उसके पास गर्मी कम लगती है, कम लगती है ना। यस Yes, मैम, ma'am. क्योंकि वो पेड़ एब्जॉर्ब कर लेता है उस गर्मी को। हाँ, वो कर लेता है, बट एट द सेम टाइम प्लांट क्या करता है, प्लांट एनवायरनमेंट में वाटर रिलीज करता है, तो उसकी वाटर रिलीज होगा तो आसपास का जो टेम्परेचर है वो अपने आप थोड़ा सा कम हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, सो दैट इज वाई जिसके घर के पास ज्यादा प्लांट्स होते हैं, वो तो उनके पास जो एरिया होता है थोड़ा सा कूल होता है, ठंडा रहता है, और जिसके पास घर के पास ट्रीज नहीं होते हैं उनके यहाँ गर्मी रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो स्टोमा है इस तरीके से खुला रहता है। बट अभी जैसे सपोज अभी कितनी बारिश हो रही है, अभी बहुत ज्यादा बारिश है और कंटिन्यूअसली रेनिंग हो रहा है, तो अभी क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, प्लांट को बाहर देने की जरूरत नहीं है, तो ये स्टोमा क्या होता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ये चीज समझ में आई। यस मैम। ऐसे गर्मी में वो ऐसे हो जाता है, और अभी थोड़ा बारिश है इसलिए वो वापिस ऐसा रीगेन कर लेता है, ऐसा हो जाता है थोड़ा सा। ऐसा होने की वजह से क्या होता है कि अब क्या होगा कि जो वाटर जो है वो ज्यादा लूज नहीं, प्लांट जो है अपने अंदर से वाटर नहीं लूज करेगा, हाँ, बट CO2 और O2 का एक्सचेंज करता रहेगा, तो प्लांट्स ये स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट। यस मैम। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपने कभी प्लांट खुद से लगाया है या कभी गार्डनिंग किया है तो आपको ऐसे आपके पेरेंट्स के साथ या आपके घर गार्डनर आता है तो आपने कभी अगर उनके साथ बैठोगे तो आप देखना कि वो लोग क्या करते हैं, जो प्लांट के आसपास का जो सॉइल होता है उसको थोड़ा सा लूज कर देते हैं, देखा है ऐसे खोद खोद के। यस मैम, वो मॉइस्ट 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 कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा लूज कर देते, क्यों लूज कर देते, क्योंकि अगर टाइट हो जाएगा तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो हम एयर को जाने का स्पेस नहीं मिलेगा। बट सॉइल थोड़ा सा लूज कर देंगे तो क्या होगा, एयर आसानी से अंदर जाएगा और बाहर रिलीज होगा, तो रूट्स को भी अच्छे से हवा मिलती रहेगी। अंडरस्टूड दिस पार्ट। यस मैम। So this is how the plants are doing performing the respiration. ठीक है, वाटर लूज करते हैं उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, बट O2 और CO2 एक्सचेंज करते हैं उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। गॉट इट। यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब आरुषि रीड करो तो बेटा, ओके मैम। प्लांट्स वाला। डू यू नो मैम, प्लांट वाला? हाँ, प्लांट्स वाला रीड वीडियो करो। को चुनी लगा एक बार मार Respiration in plants. Plants, Please, as we know, others, are also ये made up सुनो of wait, wait, cells. Arushi, wait. Others, switch off your mics, beta. छोटी वाला को Okay, now Arushi, read. Respiration in छोटी वाला plants. कोई Plants, as we know, are also made up of cells. Ayush,
Like animals, एक they मिनट आरुष, respire एक in मिनट order बेटा, to release energy. आरुष एक मिनट, आयुष अपना माइक बंद करो बेटा, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? हाँ आरुष, अभी रीड करो। Like animals, they respire in order to release energy. They also have cellular respiration. Plants synthesize sugar, glucose, which is used during respiration to produce energy. The glucose molecules break down in the presence of oxygen to release energy through a stepwise reaction. The net result of cellular respiration is that carbon dioxide आप and प्लांट्स का water रीड are कर रहे हो formed. बेटा? Yes, ma'am, respiration in plants ओके ओके, रीड करो। is that carbon dioxide and water are formed, accompanied by the release of energy. The process can be represented as follows: glucose plus oxygen is equal to arrow carbon dioxide plus water plus energy. It is interesting to note that the equation for respiration is the reverse of the equation for photosynthesis. We know that plants do not have a specific organ for breathing. They utilize the simple process of diffusion for exchanging the gases oxygen and carbon dioxide. They do so with the help of small openings on the surface of their leaves. These openings are called stomata. The stomata generally open up during the daytime and remain closed at night. They help in the exchange of carbon dioxide and oxygen. In addition to doing this exchange of gases, the open stomata also help the plant in the process of transpiration. Transpiration is Transpiration is an important part of the weather cycle in nature. It is by this process that plants lose their excess water through their open stomata. डन? No, ma'am, we थोड़ा आगे है. The following table summarizes the detail of the gases released by plants at different times of the day. Conditions: dark, photosynthesis plus respiration, respiration, no photosynthesis, oxygen taken in, carbon dioxide given out. Dim light, photosynthesis rate equals respiration rate. There is no net intake or release of either oxygen or carbon dioxide. Bright light, photosynthesis rate is greater than the respiration rate. Carbon dioxide taken in and oxygen given out. Besides stomata, some other parts of the plants like woody branches that are made of dead cells on the surface. आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस बेटा। Air from the air spaces present between the soil particles. A plant can therefore die if overwatered. This happens because air spaces in the soil then get occupied by water, and this prevents the plant roots from taking in air oxygen that they need. आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस बेटा क्लियरली। आर यू ऑल But लिसनिंग? your voice is clear. रेस्ट ऑफ अदर्स कैन हियर? Yes, miss. हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I said yes. ओके, you all can hear na whatever she is reading? Yes, ma'am. Clearly. ओके, सो दैट इज हाउ। आपके इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो ज्यादा है। आप एक बार खुद से रीड करो उसको, फिर मैं आपको समझाती हूँ। आई एम गिविंग यू 5 minutes, जस्ट रीड, एवरीबॉडी जस्ट रीड फ्रॉम योर ओन बुक्स, ओके?
एक बार अच्छे से रीड करो बेटा। मैम माइक ऑफ करके। हाँ, सिर्फ सब लोग अपना अपना रीड करें, सब लोग अपना अपना रीड करें। ओके मैम। Yes, ma'am. Completed reading. ओके डन। बाकी सब लोग रीड कर लो। आई एम गिविंग यू द टाइम, रीड इट केयरफुल।
Done? Reading part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody? Any doubts? No doubt, ma'am. No, ma'am. Okay. Then shall we do the exercise question? Yes, ma'am. Okay. Nilanjan, what happened? Your network is weak. Fine. Okay, no worries. Hello, ma'am. मैम आपकी वीडियो जो है ना वो पॉज हो गई है मैम, your video paused. और मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही है. Yes, ma'am. हेलो मैम. Hello. Hello. यस मैम अब आ रही है आवाज. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. fine. अब आ रही है. Fine. See, so question answer discuss. We can discuss the question answers of this chapter right now. Okay? Ma'am, the exercise question answer. Yes. Okay, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Okay, fine. Now see here, what you have to do is